السلام علیکم. السلام علیکم. جی بولیں. ہاں مفتی نجیب العمر صاحب. جی فرمائیں. بات کرنی ہے آپ سے اگر اجازت ہو تو. جی کیا کہنا ہے؟ آپ کا ایک کلپ یوٹیوب پہ سن رہا تھا مولانا عمران اتاری صاحب کے حوالے سے، ان کی کتاب کے حوالے سے کہ حضور غوث پاک نے ایک اپنے غلام کو سے کہا کہ فوت ہوا تھا، اس کو کہا اٹھ جاؤ، کھڑا ہو گیا، پھر اس سے توبہ کروائی، پھر وہ فوت ہو گیا تھا. آپ کون بات کر رہے ہو؟ متی اللہ بات کر رہا ہوں. اچھا بولیں. جی تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے اس کی سند کے حوالے سے، پھر آپ نے کہا کہ امت کو کیا تعلیم دے رہے ہو. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ملفوظات حکیم الامت کے اندر تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ حضور غوث پاک کا دھوبی تھا، فوت ہوا. تو جب منکر نکیر ہے انہوں نے پوچھا من ربو کا، تو اس نے کہا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. تو اس کی سند سے آپ کیا کہیں گے اس کے بارے؟ ایک نمبر دو، اشرف السوانے کے اندر اشرف علی تھانوی صاحب کا غالباً پردادا فوت ہونے کے بعد روزانہ قبر سے نکل آتا تھا اور گھر آ کر مٹھائی دے جاتا تھا. اس کی سند جی کس چیز کی؟ جیسے آپ مطالبہ کر رہے تھے واقعات کی سند ہوتی ہے. تو آپ حضرت ادھر سند کا کہہ رہے تھے، اسی سند یہ کیسے ہے؟ تو اللہ رب العزت نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپ کے مبارک اقوال کو یہ مقام دیا ہے کہ ان کی سند محفوظ ہوتی ہے، باقی فتاوی واقعات کی تو سند نہیں ہوتی ہے. محترم مفتی صاحب، آپ اس کلپ کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سند ثابت کریں. الیاس اتاری صاحب کو، وہ جو شورا کا جو ممبر ہے عمران اتاری صاحب، اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سند ثابت کرو، یہ ضعیف روایت ہے، یہ کیا امت کو تعلیم دے رہے ہو، کیوں امت کو گمراہ کر رہے ہو؟ ضعیف روایت کس نے بول دی ہے؟ وہ تو واقعہ الیاس قادری کے گاؤں کا ہے. اس کو روایت اور ضعیف بول سکتے ہیں؟ یہ تو جھوٹا من گھڑت بات تھی. الیاس قادری کے گاؤں میں ایسا ہوا، اور ایک بندہ جو ہے نا، ایک بندے کو آپ دوبارہ ظاہری حیات سے دنیا میں زندہ مانتے ہیں کیا؟ نہیں. کیا مرنے کے بعد بندہ زندہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا کسی ولی کی کرامت سے؟ ظاہری حیات میں ایک بندہ مر جائے بغیر توبہ کے، پھر زندہ ہو، توبہ کر لے، کیا اللہ کے ہاں یہ قبول ہو جاتی ہے توبہ؟ نہیں، یہ تو بات ہے نہیں. کہ میرا سوال آپ سے یہ ہے، سوال وہاں پہ میری آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، وہاں یہ بات ہوئی تھی کہ ایک آدمی بغیر توبہ کے مر گیا، جی وہ پھر اس کو آپ نے بولا کہ وہ زندہ ہوا، پھر توبہ کی. تو جب حدیث میں آتا ہے اذا مات العبد انقطع عملہ، عمل اس سے جدا ہو جاتا ہے. جی پھر اب عمل دوبارہ جوڑنے کا کوئی روایت ہے کیا حدیث کے مقابلے میں؟ اس طرح کے کسی واقعے کو آپ پیش کر سکتے ہیں؟ کس طرح؟ حدیث میں آیا ہے اذا مات العبد انقطع عملہ. جی حدیث سنیے، جی یہ حدیث سنیے تو کیا ترجمہ ہے؟ جی جی تو ٹھیک ہے، ترجمہ کیا ہے؟ محترم جو آپ کہنا چاہتے ہیں آپ کہیں نا، میں بات کروں گا جب میرا نمبر آئے گا تو میں وہ بات ایک دفعہ میں کہہ چکا ہوں، اب میں درست پوچھ رہا ہوں تو میں نے بول دی. آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا مرنے کے بعد وہ توبہ کرنے کے لیے زندہ ہوا تو کیا اس کی توبہ قبول ہے یا نہیں ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ حدیث میں جب آیا ہے بندہ مر جاتا ہے تو اس کا عمل اس کے ساتھ سے جدا ہو جاتا ہے، جی تو یہ دوبارہ اس کے ساتھ اس کا عمل جڑ جانا ایک روایت میں ہے، کسی حدیث میں ہے، کہاں سے پڑھ لیا آپ نے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا میرا موضوع اس حوالے سے نہیں ہے. میرا آپ سے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ادھر مذاق اڑا رہے تھے عمران اتاری صاحب کی بات پر، تو یہ جو گنگوئی صاحب کا، اس تھانوی صاحب کا جو پردادا ہے روزانہ قبر سے نکل آتا تھا، گھر مٹھائی دے کر جاتا تھا، اس کو تو آپ ثابت کریں نا. میں نے تو آپ کو بولا ہے واقعات ہے نا، واقعات کی سند نہیں ہوتی ہے. میں تو یہ بول رہا ہوں کہ جو تم نے واقعہ بیان کیا ہے وہ حدیث کے مقابلے میں، وہ حدیث کے مخالف ہے. اچھا، تو یہ حدیث کے بالکل مطابق ہے یہ تھانوی صاحب کے پردادے والا واقعہ؟ خواب کے واقعات ہیں، یا اگر کوئی آدمی کسی آدمی سے جس میں مچھلی کے ساتھ واقعات ہوں ان کو آپ نہیں پیش کر سکتے کہ وہ دوبارہ توبہ کرنے کے لیے دنیا میں آیا. قبر میں تو 3 سوال ہوتے ہیں، من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل. تو تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ غوث پاک کا دھوبی تو کہتا ہے کہ میں حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں، تو حدیث میں تو یہ بات آئی نہیں ہے. ادھر آپ کا حکیم الامت یہ کہہ رہا ہے، تو کیا یہ بھی حدیث کے مخالف ہے یا نہیں ہے؟ کس میں ہے؟ تھانوی صاحب نے لکھا ہے نا ملفوظات کے اندر کہ حضور غوث پاک کا دھوبی فوت ہوا. یہ تو فتاوی فیض الرسول میں لکھا ہے، یہ بے اصل روایت ہے.
मैं आपके बुजुर्ग का हवाला पेश कर रहा हूँ, ना कि आप मुझे कहें। आप अपने बुजुर्ग का दिफा करें भाई, बेअसल है। जहाँ हकीम उल उम्मत ने लिखा है ना, हकीम उल उम्मत ने उस वाक़े को इस्तिदलाल के तौर पर नहीं लिखा, वो उस वाक़े को मतलब करके उसकी एक बेहतर तावील कर रहे हैं। आपने पढ़ा पूरा मलफूजात? अच्छा, तावील क्या कर रहे हैं? तावील पढ़ी है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, तावील क्या कर रहे हैं? तुमने पढ़ी है मलफूजात या नहीं? मैं आगे तावील बताता हूँ यार। मैं आपसे तावील का पूछ रहा हूँ कि आप बताएं ना वो क्या तावील कर रहे हैं। तुम तो पूछ रहे हो ना, तुम तो पहले भी एक सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया, फिर तुमने दूसरा सवाल पूछ लिया, अब उसका भी जवाब दे रहा हूँ। तो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, तुमने मलफूजात पूरी पढ़ी है या अहमद रजा खान की तरह आगे पीछे से खा जाते थे, बीच वाली इबारत नकल करते थे? अच्छा, उधर देखे ना, आपका इंसाफ का हाल ये है कि उधर अगर यानी कि फौत होने के बाद उसने तौबा कराई हजूर गौस पाक ने, तो आप कहते हैं हदीस की ये मुखालफत है। जब मैंने इधर कहा कि कब्र में 3 ही सवाल हैं, 3 सवालों के अलावा तो हदीस में और बात तो आई नहीं, तो क्या ये हदीस के मुताबिक हदीस के मुखालिफ है? तुम्हारे इस सवाल का जवाब हकीम उल उम्मत ने खुद अपने उस मलफूजात में दे दिया है, तुम इसलिए नहीं पढ़ोगे उसको आगे। तो वो एक यहूदी आया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना, मैंने आपकी तकरीर थोड़ी सुननी है, खिलाफ था ना, आयत के जो है उसके खिलाफ था, उस पर उसने उंगली अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हकीम उल उम्मत में इसका जवाब है ना, तुम उस पर उंगली रख रहे हो। यार मुफ्ती साहब, मेरी बात सुने, मेरी गुजारिश सुने। इतराज करें आप, बिल्कुल कर सकते हैं, आपका हक है, लेकिन इतराज वो करें जो आपके घर में ना हो। इतराज नहीं कर रहा हूँ मैं, तुमसे ये कह रहा हूँ, मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि मलफूजात हकीम उल उम्मत में जो हजरत ने इस बात का जवाब दिया है वो आपने देखा है? क्या जवाब दिया है? आप दे ना, मैं पूछ रहा हूँ यार। हकीम उल उम्मत ने दे दिया है। क्या जवाब दिया? आप अपने लफ्जों में सुनाइए। मैं अपने लफ्जों में ही तुम्हें सुनाऊंगा, लेकिन तुम ये बताओ, तुमने यहूदियों की तरह हाथ क्यों रखा हुआ है उसके ऊपर? आपको कैसे पता है कि मैंने हाथ रखा हुआ है? तो फिर इस मतलब है तुम जानबूझ के कर रहे हो। यार आप वो जवाब तो इरशाद फरमा देना, मैं जो कह रहा हूँ तो आप अपने लफ्जों में बयान करें। ये बताओ, मैं बताता हूँ जवाब, बताओ तुम शरारत कर रहे हो या तुमने पढ़ा है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शरारत करने के लिए यार शैतान थोड़ा है, मैंने लाजमी शरारत करनी है। कहाँ शरारत करते हो जो और मैदान है तो? अल्लाहु अकबर। बस मैं इतनी गुजारिश करनी है। मैदान में नहीं करते, कौन से मैदान में शरारत? मतीउल्लाह सियालवी बात कर रहा हूँ, मैंने इतनी आपसे गुजारिश करी, इतराज आप करें। सियालवी की बात कर रहा हूँ या आसमानुल्लाह बात कर रहा हूँ, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तुझसे ये पूछ रहा हूँ, फर्क तो आपके क्लिप के इतराज करने से भी कुछ नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप मुनाज़िर अहले सुन्नत हैं, आप चूंकि मुफ्ती साहब हैं। मैं तुम्हें जवाब दूंगा। ये बताओ मलफूजात हकीम उल उम्मत का, मेरा जवाब सुने बगैर फोन काटना भी नहीं, तुम फोन काट दोगे। अच्छा, मैं कह रहा हूँ मलफूजात हकीम उल उम्मत का जो जवाब इस वाक़े का हजरत ने दिया है वो आपने पढ़ा है? अच्छा, अब मैं 4थी मरतबा कह रहा हूँ कि आप पढ़े ना, आप सुनाइए। मैं आपको 5वीं मरतबा कह रहा हूँ कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, शरारत कर रहे हो या पूछ रहे हो? मुझे जवाब दो, मैं पढ़ के सुनाता हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। यार मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ कि आप पढ़े, मुझे सुनाए वो क्या तावील है जो थानवी साहब ने की है, वो तावील सुनाए। मैंने इतना पढ़ा है जो मैंने आपको सुनाया है। आप सुनो ना, आप हाँ ना में बोल दो कि मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, हाँ ना में बोल दो बस। अच्छा, ये कोई मैं आपका थोड़ा सा पाबंद हूँ कि आपके लफ्जों ही में मैं आपके लफ्ज दोहराऊं, ये तो हो नहीं सकता। तुम मेरे पाबंद नहीं हो, तुमने मुझे फोन किया है तो मैं इधर तुम्हारे दादाजी का नौकर बैठा हुआ हूँ कि तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा यहाँ पे। तुम मेरे पाबंद नहीं हो, फोन तुम करते हो और पाबंद मैं हूँगा। वजह क्या है? मैं कोई तुम्हारी तनख्वाह लेता हूँ? मैं तुम्हारे लिए बैठा हुआ हूँ कि तुम्हें जवाब दूंगा? मुफ्ती साहब पाबंद नहीं, फोन कर लेते हो। मुफ्ती साहब यार इधर उधर की बातें ना करें, मेहरबानी करें, इधर उधर की बातों का फायदा भी नहीं है। आपसे इतनी गुजारिश। बोला सुनो, इरफान लकी मरवत से जो बात कर रहे हो, तुम ये बताओ, तुम जहाज का टिकट भेज रहे थे वो कब भेज रहे हो? तुमने बोला मैं जहाज का टिकट भेजता हूँ, मेरे पास आओ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, इसी मौजू पे मुनाजरा करते हैं, जहाज का टिकट दीजिए। अच्छा यार वो बात तो करेंगे ना, पहले इसको तो हल करो, इसको तो पहले किसी साइड पे लगाओ। तो ये बात नहीं करोगे? नहीं, आप ये कह दें कि जो मैंने क्लिप वो जारी किया है उससे मुझे गलती लग गई थी, मेरा मुताला सही नहीं था, मैंने अपनी बुजुर्गों किताबों को नहीं देखा था, मुझे गलती को आप ये कहते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। चलो तुम बोलो कि तुमने यहूदियों की तरह इबारत नहीं काटी है, गायब नहीं की, तुम्हें इबारत का पता नहीं है, तो मैं आगे तुम्हें उसका पढ़ के सुनाता हूँ। किताब मेरे पास है, ये मलफूजात है हकीम उल उम्मत। अच्छा, आप पढ़े। तुम बोलो मैंने यहूदियों की तरह नहीं काटी इबारत, मुझे पता है नहीं है इबारत का, मैंने आगे पीछे नहीं पढ़ा हूँ, तुम बोल दो। माशाल्लाह माशाल्लाह पढ़े। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आपका हकीम उल उम्मत है, आप अपने हकीम उल उम्मत की इबारत तो पढ़े। बताए मैं पढ़ के सुनाऊं? किताब मेरे सामने खुली हुई है, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ
तुमने पढ़ी है मलफूजात हकीम मोहम्मद आगे पीछे से या नहीं पढ़ी? मैं दावे से कहता हूँ कि मुफ्ती साहब आप जो है ना गलत बयानी कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं कि मेरे सामने पड़ी हुई है। अगर पड़ी हुई है तो पढ़े आप, माशाल्लाह, जल्दी करें। तुम कुल्लमा से तलाक डाल के बोलो कि मेरे सामने मलफूजात हकीम मोहम्मद नहीं पड़ी हुई। तुम कुल्लमा की तलाक डालो। यार आप अपने बुजुर्ग का दिफा भी नहीं कर सकते। तुम कुल्लमा की तलाक डालो, नहीं पड़ी। आप झूठ बोल रहे हैं। सामने हकीम उल उम्मत, बीमार हकीम उल उम्मत की थानवी का आप दिफा नहीं कर सकते, उसने झूठ बोला है। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, सूरज मगरिब से तुलू हो जाएगा, तू 3 कुल्लमा की तलाकें डाल के बोल के मेरे आगे मलफूजात हकीम उल उम्मत नहीं खुली हुई पड़ी हुई। आपको कैसे पता है कि मेरे पास सामने पड़ी है या नहीं? आपको कैसे पता है? तुमने बोला है। थानवी साहब जानवरों के बारे इल्म गैब के कहल हैं, कहीं तुम मेरे बारे इल्म गैब के कहल तो नहीं हो गए? क्या थानवी साहब जानवरों के बारे इल्म गैब का अकीदा रखते हैं, तो आप मेरे बारे कहीं आपका अकीदा तो नहीं है कि मैं इल्म गैब रखता हूँ? जानता था। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि मेरे सामने मलफूजात पड़ी है? आपको कैसे पता चल रहा है? आप देख तो नहीं रहे? जानता था। शाबाश माशाल्लाह, पढ़िए मलफूजात थानवी। जानता था। वो तो कहते हैं हजूर पाक गौस पाक का धोबी, कहता है मैं हजूर पाक का गौस धोबी हूँ। किसको कहते हैं? फरिश्तों को कह रहा है। तो क्या ये हदीस साबित है? सवाल गंदुम जवाब चना। अहमद रज़ाइल में जानता था। अच्छा माशाल्लाह। बस आज के बाद आपने किसी अहले सुन्नत बरेलवी के ऊपर इतराज करने से पहले आपसे गुजारिश है, आप थोड़ा सा घर में अपने झांक लिया करें बस। अरे बात सुन, मैंने जो थोड़ा सा खाना बाहर रखा हुआ था ना, वो भी ठोकूंगा। ये बरेलियों को अहले सुन्नत कहाँ से आ गए तुम लोग? तुम अपना काम करो। अहले सुन्नत की तुम्हारी शक्लें अहले सुन्नत की तरह हैं। तुम अहले सुन्नत बने हुए हो, अहले सुन्नत तुम बने हुए हो। सबर अपनी शक्लें तो देखो अहले सुन्नत वाली। अहले सुन्नत आए वो बड़े और मशहूर की दाम। अच्छा, बात मुकम्मल हो गई आपकी। मैं करूं? अहले बिदअत कहाँ रहते हैं? अच्छा, मैं करूं? ये सारे अहले बिदअत तुम लोग हो और तुम पर से कह रहे होते थे अहले सुन्नत। अच्छा, मैं अर्ज करूं, मुझे इजाजत है? वो जो बंदियों के खिलाफ तकरीर कर रहा था, उसकी शलवार उतर गई थी, वो तुम्हारा मौलवी था ना? अगर मैं उसको देवबंदी साबित कर दूं यार मुफ्ती तुम्हें इतने नहीं पता कि वो तो सुन्नियों बरेलवियों के खिलाफ तकरीर कर रहा था। देवबंदी कैसे था? वो तो तुम्हारा अपने घर का था। चल, इस पर तू कुल्लमा की तलाक डाल के वो देवबंदी था। अच्छा, आपने बोला है कि तुम अहले सुन्नत नहीं हो। अहले सुन्नत नहीं हो, सबर करो। अगर मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, मुफ्ती ने जी बोला, मेरे पास तुम्हारे बरेलवियों की वीडियो मौजूद है कि वो बरेलवी था, लेकिन मैं तुझे कह रहा हूँ कि तू कुल्लमा की तलाक डाल के वो देवबंदी था। चल, आज पता चल जाएगा तुम्हारे हम पे लगाए गए इल्जाम कितने हद तक सच होते हैं। तू कुल्लमा की तलाक डाल के बोल वो देवबंदी था। बात मुकम्मल आपकी, मैंने सुन ली आपकी बात। मैं जवाब देता हूँ। सुनने का इख्तियार रखता हूँ। तेरे मुंह से निकले तो सही, खुदा की कसम तू सारी जिंदगी किसी औरत को शादी करेगा और उसको तलाक हो जाएगी। तो कुल्लमा की तलाक डाल के बोल दे, जिसकी शलवार उतरी थी वो देवबंदी था। बात तो सुनो। तुमने ये झूठ कैसे बोल दिया यार? बात तो सुनो, सुन तो सही। तुमने ये झूठ कैसे बोल दिया कि वो देवबंदी था? सुन रहा हूँ जी, सुनाए। वो देवबंदी था। बात मुकम्मल होगी आपकी? पूछ रहा हूँ, बात ही मुकम्मल, सवाल मुकम्मल। जवाब देता हूँ। आप गुस्सा ना करें, आराम से सुनिए। बात ये है, बात चल रही थी कि आपने कहा कि तुम अहले सुन्नत कहाँ से आ गए हो, ठीक है? मैं दावा करता हूँ, दावा सुनिए मेरा दावा। क्या शलवार तू बचा रहा था? दावा नहीं सुनेगा, मुझे पता है कि तुम मर के मट्टी हो जाएगा। थानवी की तरह शलवार बचा रहा था, गंगोई की तरह तुम मर कर मट्टी तो हो सकता है, जहर का ड्रम पी सकता है, मेरा दावा नहीं सुनेगा। यार मैं दावा करने लगा हूँ। तो तू दावे तेरे हम क्या दावा करेगा तू? यार दावा तो सुना, 30 जनवरी 2021 से मेरा दावा सुना। मेरा ये दावा है, तुमने कहा कि तुम बरेलवी अहले सुन्नत नहीं हो। 30 जनवरी 2021 को मोतीउल्लाह सियालवी ने ये दावा किया है कि वो जिस बरेलवी मौलवी की शलवार उतरी है वो देवबंदी है, और तू कुल्लमा की तलाक उठाता है। उठा। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। दावा मेरा ये है। अपनी किरात सही करवा, तजवीज़ ठीक नहीं है। यार दावा तो सुना। तू दावे नहीं कर, तू मेरे सवाल का जवाब दे। जवाब देता हूँ सुने। जवाब दे, दावा नहीं करते। आज से मैं कहता हूँ, ये जो तुमने मजाक उड़ाया है बरेलवियों पर कि ये अहले सुन्नत सूर जैसे मुंह कहाँ से आ गए हैं, मेरा ये दावा है कि मैं तुम्हारी किताबों से साबित करूंगा कि बरेलवी अहले सुन्नत हैं। ये मेरा दावा है। जिधर मुझे बुलाना चाहते बुलाओ।
मैं क्यों बुलाऊंगा? तू मुझे जहाज का टिकट देगा, तूने वादा किया था कि मैं जहाज का टिकट दूंगा, अपनी तेरे पास पूरे दावे पे मुआवजा करता हूँ, जहाज का टिकट दे। तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात लिखे हुए हैं, तुम्हारी किताबों के अंदर, तुम्हारे घर में तेरे बापे ने, तेरे दादे ने, परदादे ने लिखा है। तेरे इस दावे पर मैं मुनाज़े का चैलेंज कबूल कर रहा हूँ, मुझे जहाज का टिकट भेज अपने वादे के मुताबिक। नहीं, तुम्हें जहाज पर क्यों मैं बैठा हूँ? तुम्हें मैं जहाज कर क्यों बैठा हूं? मैं तेरी किताबों से, तेरे बुजुर्गों की किताबों से साबित करूंगा कि बरेलवी अहले सुन्नत हैं और आशिक रसूल हैं। ये मेरा दावा है, मैं साबित करूंगा, और तुमने इस दावे को रद्द करना है। मैं तेरे इस दावे को कबूल करता हूं और तू अपने वादे के मुताबिक मुझे जहाज का टिकट भेज। तूने जो पिछली दफा कहा था कि मेरे पास तेरी रिकॉर्डिंग मौजूद है, तूने कहा कि मैं तुझे जहाज का टिकट भेजता हूँ, चल भेज, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, बड़े समझदार लगते हैं मुफ्ती साहब। जहाज का टिकट आपको भेजूंगा तो आप आओगे, ऐसे नहीं आओगे? तूने नहीं बोला था जहाज का टिकट भेजता हूँ। अच्छा, जहाज का टिकट आएगा तो आप आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे? मैं तेरे दादाजी का नौकर हूँ कि तेरे पास ऐसे आदमी है। तो फिर कह दो कि हम वहाबी हैं, हम नजदी हैं, हम खारजी हैं, हम कोई सुन्नी बरेलवी हनफी, ये जो इस चीज से इनकार। मुबारक हो। ठीक है, क्योंकि तुम असल में तो वहाबी हो ना, ये तो अवाम को धोखा देना चाहते हो। क्यों मुबारकबाद दे रहे हैं? और बाकी रहा आपका जो है इमरान अख्तारी साहब पर इतराज, ये मुफ्ती साहब ये तरीका छोड़ दें, कम से कम इतराज करने से पहले अपने घर के अंदर थोड़ा सा झांक लिया करें। ये मलफूजात हकीमुल उम्मत मेरे पास पड़ी हुई है, मैं इसमें से इबारत पढ़ के तुझे सुनाता हूँ। अच्छा, ये तो तस्लीम कर लिया है ना कि बरेलवी अहले सुन्नत हैं? किसने तस्लीम कर लिया? ये तो तस्लीम कर लिया है ना? किसने? तुमने। तुम अहले सुल्तान उतरती है। यार तेरे पास इन अल्फाज के अलावा है तेरे पास क्या? यही बकवास बात है। गालियां देना, ये साजिद खान से लेकर अबू अयूब से लेकर घुम्मन तक तमाम का यही हाल है। गालियों के सिवा तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाकी मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इतराज करने से पहले कम से कम अपने घर में थोड़ा सा झांक लिया करें, क्योंकि तेरा थानवी बीमार हकीमुल उम्मत कह रहा है कि हुजूर गौस पाक का धोबी फौत हो गया था, तो मुनकर नकीर फरिश्ते पूछने के लिए आए थे, तो हुजूर गौस पाक के धोबी ने कहा मैं हुजूर गौस पाक का धोबी, उसको हदीस से साबित करो। ये तो हदीस की मुखालफत है। अरे तेरा हकीमुल उम्मत लिख रहा है। तू आगे जवाब सुनना, जवाब सुनने की हिम्मत है तेरे में? हाँ सुनाओ। हिम्मत है जी? सुना है। दिल पे हाथ रखना अटैक हो जाएगा। जी। इतने तसर्रुफात हैं कि तू उधर बैठा है कि इधर मुझे अटैक हो जाए, इतने तसर्रुफात हैं। तुम तो इस चीज के मुनकर हो। नहीं, हम इससे ज्यादा तसर्रुफात के कायल हैं। ना मुनकर हो, ये तो धोखा देना चाहते हो। ये किसने बताया कि हम तसर्रुफात के? तू देखना, मैं कराची बैठा हूँ, इंडिया में एक बरेलवी हमारे खिलाफ तकरीर कर, उसकी शलवार उतर गई। हमारे तसर्रुफात नहीं मानते। अच्छा, इस तसर्रुफ पर दलील दलील होती है। देख बात सुन, बाहर सूरज निकला हुआ है, इसकी कोई दलील होती है? क्योंकि ये झूठ बोलना तो तुम्हारा पुराना तरीका है। क्योंकि झूठ बोलना खुदा के लिए तुम जायज समझते हो, तो अपने लिए तो वाजिब समझते होंगे। ये बता, बात सुन, ये झूठ है जो मैं बोल रहा हूँ शलवार उतरी? हाँ, झूठ बोलना तो, क्योंकि कासिम ननोतवी कहा करता था मैं सही झूठ बोलता हूँ। नहीं, ये झूठ है कि शलवार उतरी तुम्हारे मौलवी? ये तो तुम्हें विरासत से मिला है झूठ बोलना। मतलब ये झूठ है या नहीं है? नहीं बोलेगा तो बता, आगे खुलना बाकी इंतजार करेंगे। बस मुफ्ती साहब, ये तुम्हारे पास इन बातों के अलावा है क्या? ये शलवार उतारना फिर बांधना, क्योंकि उस्तादों ने तुम्हें सिखाई है शलवारें उतारना है, और तो कुछ नहीं सिखाया। बरेलवी की शलवारें तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद उतर जाती है। अच्छा, घुमन साहब ने तमाम आपके हाफिज़ा ने यही शलवारें उतारना और बांधना आप मदरसे में यही सीखते हो? हाँ, ये शलवारें उतारना मदरसे में सीखते हो? नहीं, ये तो अहमद रजा से पूछ जो नवाब करबली के पलंग में। अच्छा, ये मतीउल्लाह सियालवी से बात कर रहा है, समझ आ रही है? तो ये शलवारें उतारना, नवाब अली के पलंग में क्या कर रहा था और उस पर वो जान क्यों छड़क रहा था? ये मतीउल्लाह सियालवी तुम्हारे घर ही से तैयार हुआ है, तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी मजबूर बात ना किया करें जिसकी दलील हर घर में एक लेटरीन होती है। सुन, हर घर में एक लेटरीन होती है। हसन अली रिजवी ने लिखा है, हर घर में एक लेटरीन होती है। तुम मदरसों में यही शलवारें उतारते हो? तुम्हारे वो घुमन साहब की बीवी, फिर घुमन साहब की बीवी ने घुमन साहब के बारे में सही कहा था। तूने पहले भी आधी बात नकल की, फिर आधी बात सुन रहा है। घुमन बात नहीं सुना कर, पूरी सुन। उसको हसन अली रिजवी को तुम्हारे मौलवी ने लिखा है कि हर घर में एक लेटरीन होती है, और बरेलियों के घर की लेटरीन हसन अली रिजवी है। तो किसी के घर की लेटरीन होगा ना जिसके घर में। अनजर शाह कश्मीरी कहता है कि दारुल उलूम देवबंद का माने लेटरीन। अब बताओ,
बात सुन, अनवर साहब कश्मीरी कहते हैं दारुल उलूम का माना है देवबंद, ये लेटरीन का नाम है। तो घुम्मन साहब की बीवी जो कहती थी घुम्मन के बारे, तो वो मतलब कि सच कहती थी, झूठ नहीं कहती थी। घुम्मन साहब की बीवी कहती थी, तू घुम्मन साहब का शाला लगता है कि तेरे को उसने बताया? वो घुम्मन साहब का मेरा क्या ताल्लुक है? घुम्मन से तू मुरीद है। बीवी आके बता रही थी कि उसने यूं बोला है, तू ये खिलवाड़े उतारना, ये फुला करना, तुम्हें मदरसों में यही सिखाया जाता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत व जमात हनफी बरेलवियों को इस चीज से कोई गर्ज नहीं है। हमें मदरसों में ये सिखाया गया था शलवार उतारना, लेकिन हमने आके देखा जलसे में तुम्हारी खुद ही शलवारें उतारने लग गई, हमने छोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सम्मान मुफ्ती साहब ने सम्मान लिया कि मदरसों में हमें शलवार उतारना सिखाया जाता है। वाह वाह क्या बात है। मुफ्ती नजीबुल्लाह ने इकरार कर लिया कि हमें मदरसों में शलवारें उतारना सिखाया जाता है। बस बस मसला हल हो गया है। जो शलवारें उतारे वो तो होता ही हमेशा बेशरम है, जैसे तुम हो। क्या होते हैं? जैसे तुम हो बेशरम। तो वो जो क्योंकि सिखाया तुम्हें यही जाता है ना, जो बच्चे को सिखाया जाता है फिर बोलता वही है। तेरे बच्चों की शलवार पड़ोसी आके उतारते हैं तो खुद उतारते हैं। यार तेरे पास इन अल्फाज के अलावा कुछ तुमने इतराज तो कर दिया है। तुमने उतारना बेशर्मों का काम है ना। तुमने इलियास कादरी साहब के मुरीद मौलाना इमरान अत्तारी साहब पर इतराज तो कर दिया है, लेकिन तुम जहल को इतना भी नहीं पता कि वही चीज तो मेरे अपने घर में पड़ी हुई है, तुम्हें इतना भी नहीं पता। तो आइंदा के लिए होशियार रहना, ऐसा इतराज ना किया करें जो तुम्हारे अपने घर में मौजूद हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा तेरी बकबक खत्म हो गई, मैं जवाब दूं? जी तेरी बकबक खत्म हो गई तो जवाब दूं? नहीं, मैंने तो बकबक करने के लिए फोन थोड़ा किया था, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, ठीक है। तो मैं सिर्फ तुम्हें अपना चेहरा दिखाना चाहता था, वो मैंने दिखा दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह तुमने इकरार कर लिया कि हमें मदरसों में शलवारें उतारना सिखाया जाता है, तो फिर सारी पार्टी तुम्हारी यही है, तुमने खुद इकरार किया है। तुझे क्या लग रहा है? तुम्हारी शलवारें खुद उतर रही हैं? आइंदा के लिए इसी तरह इतराज से गुरेज किया करें। इतराज वो हो जो करने के लायक हो, जो मुशरिक और बिदती है ना, उनकी शलवारें उतारना तो पहले से चलता हुआ आ रहा है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी तरीकेकार चल रहा है। अच्छा ये तो हम करते रहेंगे, तुम बेफिक्र हो जाओ। अच्छा तू अगर ये सोचेगा, अगर हमें मौका नहीं मिलता ना तुम्हारे जलसे में खुद भी उतर जाएगी, अगर हम नहीं उतारेंगे वो खुद उतर जाएगी, कुछ ना कुछ होगा। अच्छा ये बताओ, अहमद रजा खान की शलवार से क्या उतारे, वो बेचारा पहनता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, तुमने हमें मुझे भी मुशरिक कहा है। तेरे मुशरिक कहने से कुछ नहीं पड़ता, क्यों कि तेरी मसलक के अंदर कोई हैसियत ही नहीं है। तेरे बड़े बड़े जो बुजुर्ग गुजरे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुसलमान पक्का सच्चा आशिक रसूल तस्लीम किया है, तो तेरे मुशरिक कहने से कुछ नहीं बनेगा। अगर मेरी मसलक में कोई हैसियत नहीं होती तो डेरा इस्माइल खान से किसी को क्या जरूरत थी कि कराची में मेरे को फोन करता। मैं तुम्हें तेरा चेहरा दिखाने के लिए, ये जो तेरा काला चेहरा है ना, ये जो तेरा काला चेहरा है ना, तेरा काला चेहरा, मैंने तेरी अपनी तुझे हैसियत दिखानी थी, जो मैंने दिखा दी, और तुमने खुद इकरार किया कि मदरसों में हमें शलवार उतारना सिखाया जाता है, वो तुमने इकरार किया। मेरी वीडियो से अगर तुझे दर्द ना होता ना तो डेरा इस्माइल खान